Good morning, students. Once again, welcome to the channel Singhvi Brothers. Today, we will talk about our next concept, which is GST. Right, as everybody knows, GST has been implemented into our country. So today, we will start with GST. So, guys, this chapter we will be completing into three parts. First, we will read part 1, then revise again part 1, then go to part 2, revise part 1 and part 2, and then go to part 3. So, part 1 we will talk about introduction to GST, understanding of tax structure and tax structure prior to GST. Part 2 we will talk about GST and its components, tax structure after GST, advantages and challenges in GST. Part 3 we will talk about understanding with the help of illustration, history of GST, journey of GST in India, tax rates after GST, and structure of GST Council. So guys, let us talk about the first concept, introduction to GST. In our country, on August 3, 2016, a new chapter was added to the tax regime, and that same chapter, a part of a chapter, is also added to your course book. So, the Rajya Sabha successfully passed the constitutional amendment bill for GST. So, GST was introduced in our country on 1st July 2017. Guys, please make a note of this date, that on 1st July 2017, and it replaced almost all the types of indirect taxes. So means to say that almost every tax, right, indirect tax, all those indirect taxes which were earlier charged by the government has now substituted into GST, and GST has came into the picture in 1st July 2017. Moving ahead, before we talk about taxes, first let us understand the concept of tax. Like, what are the types of taxes? So here guys, we have tax. First of all, a tax is a compulsory payment to the government by the household income. So when I say that this particular tax, when I say a part of your income is to be paid to the government, so it is a compulsory payment. If I say that you have purchased a car and government is charging X amount on that particular thing, so that's a tax. The government, you have to pay to the government. There is no if and but that, sir, I will not pay. Tax is a compulsory payment which is to be paid by everyone. Each and every household is supposed to pay, each and every firm is supposed to pay if it is levied on them. If it is not levied on me, I will not pay. But if it is charged on me, then definitely I am going to pay. So that is a tax. Tax is a compulsory payment, right? So please make a note of it. Tax क्या है आपका? Compulsory payment है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है. कौन देता है? Households देते हैं और firms देती हैं, right? So guys, we talk about the next concept. Types of tax में हम आज बात करते हैं direct tax. So what is a direct tax? A tax which is paid by a person on whom it is to be imposed. Means जिसके ऊपर impose किया है वही बंदा क्या करेगा? Tax pay करेगा, right? So these are the taxes which are non-transferable taxes. कौन से taxes students? Please make a note of it. Direct tax को हम क्या कहते हैं? Non-transferable taxes भी कहते हैं, जो कि पे करता है, कौन करता है? टैक्स पेयर. किसको पे करता है? गवर्नमेंट को, राइट? सो यू कैन ऑलवेज से दैट डायरेक्ट टैक्स क्या है? इज अ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन फ्रॉम whom it is to be collected, and that is income tax.
Am I clear? Next concept comes is indirect tax. So indirect taxes क्या हो गए आपके? देखो डायरेक्ट टैक्स तो क्या थे आपके नॉन ट्रांसफरेबल, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आपके ट्रांसफरेबल टैक्सेस हैं, राइट? तो इसके अंदर क्या होगा, जो लाइबिलिटी है टू पे कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, और जिसका अभी हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सा है, जीएसटी. This is indirect tax. So indirect tax क्या होगा students? A tax which can be transferred to another tax, or a tax which is earlier charged on a person or a firm, then later on the burden keeps on shifting until the final consumer consumes the goods or services, right? So direct tax, non-transferable, paid by the person on whom it is to be imposed. Indirect tax, paid by one, burden keeps on shifting, so it is a transferable tax, right? So moving ahead, if you guys look here, a tax structure prior to GST, तो tax structure दो parts में divide थे आपके, direct tax और indirect tax. और direct tax के अंदर आपका income tax, wealth tax, ये दोनों आते थे. और indirect tax के अंदर देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज चार्ज करती थी, सर्विस भी चार्ज करती है, कस्टम ड्यूटी भी चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट चार्ज करती थी, और एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे के सारे टैक्स जो है कौन चार्ज करता था आपके टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर थे, आपके स्टेट गवर्नमेंट जो चार्ज करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती थी. डायरेक्ट टैक्स तो अपन ने भी पढ़ा था, दोनों चीजें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ गया, आपका वेल्थ टैक्स आ गया, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसमें कौन कौन से टैक्सेस आ गए आपके स्टूडेंट्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम, राइट. स्टेट में आपके वैट, एंट्री, ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई आपके, these all came into your state taxes, right? So students, this was the tax structure which was prior to GST. अब हम बात करते हैं GST के बाद क्या, तो सबसे पहले समझते हैं कि GST क्या है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना ये चीज को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, राइट? तो गुड्स और सर्विस टैक्स क्या है, इट इज अ टैक्स लॉ इन इंडिया, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज. गुड सर, स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इट, वापस हाईलाइट कर रहा हूं, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स that is levied on every value addition students. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मल्टी स्टेज एंड देन डेस्टिनेशन बेस्ड. और वैल्यू एडिशन तो आप समझते हैं कि मैंने वैल्यू एडिशन करी, मैंने टैक्स पे किया, अगले ने वैल्यू एडिशन करी, वो टैक्स पे करेगा सिंपली. तो हम आगे चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज. एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक बंदा है जो कि क्या करता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है. तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन एन इंडस्ट्री एंड सोल्ड टू होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 100 प्लस 12%. तो पहला टैक्स किसने पे किया आपका, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट टैक्स जो है आपका मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, आपका टैक्स पे कर रहा है. सबसे पहले कितना टैक्स पे कर रहा है, 100 के ऊपर 12%, राइट. तो फर्स्ट टैक्स कौन पे कर रहा है, मैन्युफैक्चर पे कर रहा है. कितना कर रहा है, 12%. किसके ऊपर, जो 100 रुपीज उसने लिया है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को गुड्स सेल किया, कैसे किया, 100 प्लस 12% पे. अभी होलसेलर क्या करेगा, गुड्स सेल करेगा किसको, रिटेलर को. तो उसने सोचा कि 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसने वो गुड्स कितने में बेचा, 120. तो क्या वो 120 में सेल कर देगा, नहीं, ही विल चार्ज टैक्स. कितना टैक्स चार्ज करेगा, 120 पर अगेन 12% जो है वो टैक्स चार्ज करेगा, राइट. सो लुक हियर, होलसेलर एंड सोल्ड गुड्स टू रिटेलर फॉर
120 प्लस 12%। तो एडिशनल जीएसटी उसने क्या चार्ज किया? 12%। और किसका? उसके प्रॉफिट मार्जिन का। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था उसका? 100। 120 माइनस 100 विच इज 20, ये उसका प्रॉफिट मार्जिन, राइट। सो वो क्या करेगा? 12% चार्ज करेगा किसका? 20 का, है ना। क्यों किया? क्योंकि 20 इज द वैल्यू एडिशन। 20 क्या है उसका? value addition. If you look at this, GST is charged by retailer is 12% on 20, so 20 is the value addition by retailer. तो टैक्स क्या हो गया? ये मल्टी स्टेज है। सबसे पहले किसने चार्ज किया स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर के बाद कौन चार्ज कर रहा है? होलसेलर चार्ज कर रहा है। अभी तो हमने रिटेलर की बात नहीं करी। अब अगर रिटेलर भी बेचेगा तो रिटेलर भी क्या करेगा? अपना टैक्स चार्ज करेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, हियर tax is charged on every value addition. क्लियर है ये? आगे चलते हैं हम। तो हम एक बार डेफिनेशन पे लेता हूँ पहले वाली, जहां पर हमने बात करा। तो मल्टी स्टेज तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड की, राइट। तो ये भी मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया, फिर होलसेलर करा, फिर रिटेलर ने करा। सो दिस इज मल्टी स्टेज टैक्स। और ये सब कब चार्ज करेंगे? एवरी वैल्यू एडिशन जो ये लोग कर रहे हैं, हर एक वैल्यू एडिशन पे ये टैक्स चार्ज करेंगे। अब हम चलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। तो डेस्टिनेशन बेस्ड में क्या है कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं कहां पर? तमिलनाडु में। और सोल्ड हुए हैं कहां पर? कर्नाटका में। मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु। कैन यू सी दिस? यस, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ है। और सेल कहां पर हो रहे हैं आपके? कर्नाटका। जीएसटी का एक सिंपल सा रूल है, जीएसटी इज चार्ज एज द लेवल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सो ये कंजम्पशन पे लगेगा। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु से जब गुड्स सेल कर रहे हैं तब टैक्स नहीं लगेगा, तब भी टैक्स लगेगा। लेकिन जो फाइनल जो कंज्यूमर से जो कलेक्ट होगा ना टैक्स, वो कर्नाटका गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो वो कहाँ रहेगा? कर्नाटका के पास रहेगा। सो एंटायर टैक्स रेवेन्यू जो है कहाँ जाएगा? कर्नाटका के पास जाएगा। तमिलनाडु के पास कुछ भी नहीं आएगा। तमिलनाडु वाली गवर्नमेंट का हिसाब वो बाद में करते रहेंगे, वो हम आगे की वर्किंग है। We are not considered about that particular working, but this is what we are currently thinking about, right? फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है, that is your the concept of जीएसटी को वापस सिंप्लीफाई करें तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है which is levied on the supply of goods and services. So it is one indirect tax for the entire country. पूरी कंट्री के लिए एक ही टैक्स लगेगा। वो कौन सा है आपका? जीएसटी। सो स्टूडेंट्स, जीएसटी लॉ जब से आया है इसमें बहुत सारी चीजें हैं that has been replaced and many indirect tax laws that previously existed in India. तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो कि जीएसटी में आने के बाद हट गए हैं? तो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है जो हट गई है। सर्विस टैक्स जो था वो हट गया है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सरचार्जेस एंड सेस। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग टैक्स लगा करते थे पहले, वो सारे टैक्स अब क्या हो गए? नहीं लगते हैं। इन सब की जगह एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। मैं क्लियर? आगे चलते हैं। अब वो तो थे सेंट्रल लेवल पे। अभी हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस हो गए। वैट और सेल्स टैक्स जो लगता था वो अब नहीं लगता। एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगता था वो अब नहीं लगता। आपकी लग्जरी टैक्स नहीं लगता। लॉटरी बैटरी गैम्बलिंग नहीं लगता। एंट्री टैक्स इन लियो फैक्टरी नहीं लगता। ऑक्ट्री तो काफी पहले बंद हो गया था, लेकिन ये सारे टैक्सेस अब नहीं लगते हैं। इन सब की जगह भी अब कौन सा टैक्स लगता है स्टूडेंट्स? एक ही टैक्स लगता है, वो आपका जीएसटी। अभी तो हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू स्टूडेंट्स, आपको पता है टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है, ठीक है। किसको? गवर्नमेंट को।
टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल टैक्स के अलग आते थे, स्टेट के अलग आते थे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अब अलग हो गई हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो टैक्सेस है वो क्या हो गए हैं, सब्स्यूम्ड हो गए। कहां पर, एक ही जगह पर, वो कौन सा है आपका, जीएसटी। सो दिस इज टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी। फर्दर वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज व्हाट इज जीएसटी, जो हमने बात करी थी स्टूडेंट्स, याद रखना। GST is a comprehensive tax which is charged on every value addition and it is multi-based and destination, multi-stage and destination-based tax. Moving ahead, the next comes is the types of GST. ठीक है, जो हम कौन से पढ़ रहे हैं अभी, तो GST को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने डिवाइड नहीं किया है, it is government which have decided it. So government have divided this into three parts. One is your CGST, second is SGST and third one is IGST, right guys? So moving ahead, the component of GST, बहुत ध्यान से सुनना guys, CGST stands for Central Goods and Service Tax. CGST stands for Central Goods and Service Tax. बहुत important concept है students. So CGST is actually collected by the central government. As the word itself suggests that CGST stands for Central Goods and Service Tax. It means that CGST, the tax which is charged under CGST, is actually collected by central government. But question आता है कि सर CGST कब चार्ज करें? बहुत ध्यान से सुनना। CGST is collected by the central government on intra-state sales. Students, please make a note of it. CGST collected by central government on intra-state sales. कहने का मतलब, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, कब चार्ज करते हैं, इंट्रास्टेट, सॉरी I'll clear myself, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं, एक ही स्टेट के अंदर आप चेंज करते हैं, इंट्रास्टेट, विद इन अ स्टेट, राइट। सो एक स्टेट से सेम स्टेट में, मीन्स राजस्थान का गुड्स आप कहां पर सेल कर रहे हैं, राजस्थान में सेल कर रहे हैं, तो इट इज योर चार्जेस, कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे, CGST चार्ज करेंगे। अरे बस समझ में, तो वापस स्टूडेंट्स ध्यान रखना, CGST इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब विद इन द स्टेट। अरे बस समझ में, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो CGST is Central Goods and Service Tax collected by central government on intrastate sales. Next आता है SGST. SGST कौन चार्ज करेगा? As the name says, SGST stands for State Goods and Service Tax. SGST क्या होता है? State Goods and Service Tax, and it is collected by State Government. कौन कलेक्ट करेगा? State Government कलेक्ट करेगा, और ये भी कब कलेक्ट करेगा? इंट्रास्टेट में। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पहले भी आपने बताया था CGST इंट्रास्टेट पे लगता है, SGST भी इंट्रास्टेट पे लगता है, तो दोनों ले रहे हैं। गाइस, इसका एक सिंपल सा फंडा है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत ही क्लियर है कि अगर किसी गुड्स के ऊपर 12% टैक्स लगता है तो इसको जब हम क्या करते हैं, इंट्रास्टेट, एक ही स्टेट में सेल हो रही है, 12% चार्ज हो रहा है, और किस पे चार्ज हो रहा है, आपके इंट्रास्टेट पे। इंट्रास्टेट पे 12% चार्ज हुआ है, तो इस इंट्रास्टेट का 12% में से दो पार्ट्स होंगे, 6%, 6%, जिसमें से एक 6% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CGST के फॉर्म में, और दूसरा 6% किसके पास जाएगा, SGST के फॉर्म में, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। आई बात समझ में? तो कंफ्यूज ना होना, SGST is also collected by the state government on intrastate sale, and CGST is also collected by central government on intrastate sale. So दोनों intrastate sale पे लगते हैं, पर दोनों का क्या है, हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों का शेयर जो है हाफ हाफ रहता है, राइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स इज IGST. IGST कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। IGST कौन कलेक्ट कर रहा है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके ऊपर सेलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है इंटरस्टेट सेल।
तो अगर मैं राजस्थान में रहता हूं और मैंने गुड्स महाराष्ट्र में बेचे हैं, तो मैं कौन सा टैक्स चार्ज करूंगा? मैं चार्ज करूंगा IGST। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो टैक्स है ये कौन कलेक्ट कर रहा है? मैं कलेक्ट कर रहा हूं, बट मैं किसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा हूं? मैं कलेक्ट कर रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस IGST इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कब लेती है? इंटर स्टेट पे। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अंडर द GST रेजाइम की बात करें तो वही वापस वही सारी चीजें हैं। द टैक्स विल बी लेविड एट अ फाइनल पॉइंट ऑफ सेल। सो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, कौन सी सेल? इंट्रा स्टेट सेल, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST विल बी चार्ज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इंट्रा स्टेट सेल्स कौन कौन से टैक्स लगेंगे? सेंट्रल GST और स्टेट GST। और इन केस ऑफ इंटर स्टेट कौन सा लगेगा? integrated GST will be charged. So this is the tax structure after GST. So tax वही आपका डायरेक्ट टैक्स है और आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट में अब क्या आ गया? आपका GST आ गया, जहां पर बहुत सारे टैक्सेस थे, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वी हैव GST। वही इनकम टैक्स में आपका, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स तो है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो पहले जो इतने सारे टैक्सेस थे वो सारे कहां सब्स्टिट्यूट हो गए? GST में हो गए। CGST, SGST एंड IGST। राइट स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस ऑफ द GST। तो सबसे पहला तो क्या हो गया? आपका एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी टैक्स। पहले तो एक टैक्स लगता था, फिर उसके ऊपर दूसरा टैक्स, फिर उसके ऊपर तीसरा टैक्स। गाइस यहाँ पर वो जो चीज है वो अब नहीं होती है। गाइस नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक आपसे पूछ लिया जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट इज टैक्स ऑन टैक्स। जैसे कि पहले अगर मुझे महाराष्ट्र से गुड्स मंगाना है राजस्थान में, तो पहले क्या टैक्स लगते थे? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, तो महाराष्ट्र से मुझे मान लीजिए 100 रुपीज का गुड्स मंगवाना है। कितने का गुड्स मंगवाना है? 100 रुपीज का। और उसके ऊपर लगता था पहले GST से पहले, एक तो लगता था CST, और CST के बाद स्टेट में ला करके अगर मैं उसे बेचता हूं तो मुझे उसके ऊपर VAT भी देना होता था। सो अर्लियर व्हेन आई वाज taking the goods from other states, I used to pay CST and I used to pay VAT. So given that CST assume कर लेते हैं अपन कि CST था 10% और VAT जो आपके सिटी में लगता था स्टेट में 15%। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ एक बार, वापस से आपको बताता हूँ कि मुझे 100 रुपीज का गुड्स था जिसमें से मुझे CST देना है 10% और VAT भी देना है मुझे 15%। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती थी? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 100 पे 10%, यानी कि मुझे वो 110 का पड़ेगा राजस्थान में आने पर। पर राजस्थान में जैसे ही आऊंगा तो उसके ऊपर वापस मुझे क्या करना है? 15% वैट भी देना है राजस्थान के लिए, है ना? क्योंकि कोई डीलर मंगाएगा, तो डीलर ने मंगाया तो होलसेलर ने यहाँ पर लिया, यहाँ पर आने के बाद मुझे जाएगा तो वो 110 के ऊपर 15%, तो कितना हो गया? 110 का 15% कैलकुलेट करो तो ये आपके हो जाएगा 100 पे तो 15 तो आपको देना ही है, प्लस 10 पे आपको और 15% देना है, तो विच इज 1.5, यानी कि आपका टैक्स अब कितना हो गया? 16.5। जो डायरेक्टली आपके 100 के ऊपर 15% लगना था वो आपके किसके ऊपर लग रहा है? 110 पे लग रहा है। इट मींस ये जो 1.5 जो आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, ये आप क्या दे रहे हो? टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हो, क्योंकि CST जो लगा था ना 10%, उस टैक्स के ऊपर भी आप क्या कर रहे हो? 15% टैक्स दे रहे हो। अरे बस समझ में? तो स्टूडेंट्स जो ये कैस्केडिंग इफेक्ट था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, GST इज मेनली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। सारे के सारे रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न फाइलिंग से लेकर के सब कुछ, एवरी स्मॉल थिंग वो कहां पर हो रहा है? आपका
टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है. सो इट इज टेक्नोलॉजी ट्रिगर एंड इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी. Definitely when everything is done according to the technology, then definitely there are 100% chances that the people will have online mode of payment or banking transactions, and that will stop the flow of black money in the economy. And next comes is it saves times because all the things are technologically done. So definitely by पहले तो क्या होता था कि रिटर्न आपको बनाना है, मैनुअली आपको करना है. अब सारी की सारी चीजें यू हैव टू डू इट ऑनलाइन. सो ऑनलाइन से आपकी क्या हो जाएगा, चीजें आसानी से हो जाएगी. फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है चैलेंजेस. व्हाट आर द चैलेंजेस, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने प्रॉब्लम्स है. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड रॉबस्ट इंटरनेट सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ पर मिसिंग है. आज की तारीख में आप चले जाओ, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, दे आर देयर इन द स्मॉल टाउन्स. उनको रिटर्न फाइल करना तो वो क्या करेंगे, दे विल हैव टू कम टू सिटी. वहां से वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू देंगे. और या फिर वहां पर है तो प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है. And when they don't have the proper internet facility, what will happen कि at the end of the day उनको क्या करना पड़ रहा है कि उनको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोग टाइम पे फिल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर सिस्टम. फिर उसके बाद हायर कॉस्ट इसलिए कि पहले तो क्या है कि मैनुअली बिल बना सकते थे. अब भी आप बना सकते हो, लेकिन उसको वापस रिकॉर्ड करना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेगा, या फिर एक अकाउंटेंट को भी हायर करें हु हैज अ टेक्निकल नॉलेज, ही विल चार्ज, राइट. सो दीज ऑल आर द drawbacks of this particular system. So guys, these were the challenges. एक बार वापस से अपन फटाफट से पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमने आज शुरुआत किया था कि टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट. टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में हमने इनकम टैक्स लिया, वेल्थ टैक्स लिया. इनडायरेक्ट टैक्स में हमने सेंट्रल टैक्स और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी. और ये जितने भी जो टैक्सेस हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, ये सारे के सारे किसके अंदर सब्स्यूम्ड कर लिए गए, जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर लिए गए. फिर उसके बाद हमने जीएसटी की बात करी. तो जीएसटी वाज योर मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड, जो कि हर वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है. उसके बाद हमने बात करी स्टूडेंट्स आज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सेल पे लगते हैं और ये आईजीएसटी इंटर स्टेट सेल पे लगता है. तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटर स्टेट सेल पे दोनों का कितना परसेंट शेयर रहता है, 50-50% दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. और आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट. फिर हमने बात करी थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म हो गया, कैस्केडिंग ऑफ फैक्ट खत्म हो गया, विच इज टैक्स ऑन टैक्स जो हमने बताया था. फ्लो ऑफ ब्लैक मनी कम हो गया, राइट. थोड़ा सा हमने एक और चीज पढ़ा था कि हमने टाइम सेव किया था इसके थ्रू, राइट. इट सेव्स टाइम्स. फिर हमने बात करी थी डिसएडवांटेजेस की. इट रिक्वायर्स रोबस्ट इंटरनेट सिस्टम, टेक्निकल नॉलेज, हायर कॉस्ट. तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ जीएसटी. अब गाइस अगर हमारे को चीजें समझ में आ गई ना, तो ये जो इलस्ट्रेशन जो मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये आपको एकदम से क्लियर हो जाना है, ठीक है. तो यहां पर दे रखा है कि एक डीलर है, कहाँ का है, गुजरात का डीलर है. कहाँ का स्टूडेंट्स, गुजरात का डीलर है. और कहां पर गुड्स बेच रहा है, पंजाब में बेच रहा है. तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि क्या ये इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है. तो हमें ये पता चला कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इट मींस विद इन द स्टेट नहीं है, ये इंटर स्टेट है. सो इंटर स्टेट सेल से तो कौन सा गुड्स चार्ज होगा स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट पे हम कौन सा गुड्स लेते हैं, आईजीएसटी चार्ज करते हैं. यहां तक हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर. अब हम आगे पढ़ते हैं. दैट कितने का गुड्स सेल किया इसने, 50,000 का, और जीएसटी रेट है 18%. तो अब जब 18% चार्ज कर रहा है, अभी अपन ने बात किया कि गुजरात से पंजाब आपका इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट नहीं है. तो इसके ऊपर हम कौन सा गुड्स चार्ज करेंगे, क्लियरली देख रखा है, आईजीएसटी दे चार्ज करेंगे. तो डीलर को कितना चार्ज करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है आपका 50,000 का 18%. So dealer has to charge rupees 9,000 as IGST, and this revenue will go to central government. ये समझ में आया? This is the one part of the example, right? So यहाँ पर interstate है ना, ये आपका interstate था, तो हमने IGST चार्ज किया. फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
की बात करेंगे कि ये जो है हमारा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द सेम डीलर, ठीक है। अब कहाँ का है वो? गुजरात का है, राइट। सो द डीलर ऑफ दिस गुजरात, राइट, कितने का गुड सेल किया इसने? 50,000 का। सेम डीलर, यानी कि बंदा पहले कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ सेल कर रहा है? गुजरात में सेल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो कि जब हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो विद इन द स्टेट क्या होता है? विद इन द स्टेट जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे? वी विल चार्ज SGST एंड CGST, राइट। हम क्या कर रहे हैं? गुजरात में ही सेल कर रहे हैं, तो कौन से टैक्स चार्ज होंगे आपके? SGST और CGST, और दोनों का जो शेयर है यानी कि आपका CGST और SGST, इन दोनों का शेयर कितना रहेगा? 50-50%। तो गुड्स बेचा, उसकी रेट कितनी है? 12% है, तो हम 6% ही CGST चार्ज करेंगे और 6% ही SGST चार्ज करेंगे, राइट। सो डीलर हैज टू कलेक्ट 50,000 का 12%, विच इज 6,000। तो 6,000 टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेगा, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट का 6% विच इज 3,000 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का 6% 3,000, दोनों तो का है ना। पहला वाला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा वाला आपका स्टेट गवर्नमेंट। सो द 3,000 will go to the central government and the 3,000 will go to the Gujarat government, right, as it is the sale within the state. I hope the concept of GST समझ में आ गया आपको। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो चीजें हैं, अभी तक तो अपन ने जो बात करी पढ़ा है अपन ने, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड था? They all were related to the concept of GST, है ना। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा थियोरेटिकली पार्ट, जो कि आपको लर्न करने के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन हमको डेटास भी जरूरी है, राइट। सो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी कंट्री थी? फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, जो कि अभी तक 150 से ज्यादा कंट्रीज में है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने फ्रांस का कॉपी किया, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज सिस्टम कि उन्होंने किस तरीके से अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री टू कंट्री, उनके जो सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशंस और कंट्रीज हैव ईदर इंट्रोड्यूस नेशनल जीएसटी और डुअल जीएसटी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसे किया। लेकिन जीएसटी मींस वन गुड्स वन नेशन वन नेशन वन टैक्स, राइट। सो हमारी कंट्री की बात करें हम तो कि जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, हमारी कंट्री में जीएसटी का क्या सीन रहा टिल द डेट। अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हुआ और कैसे क्या सारी चीजें हुई, तो सबसे पहले हम बात करें तो जीएसटी की जो जर्नी है हमारी कंट्री में वो कहां से शुरू हो गई? 2000 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तभी से जीएसटी के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया था। अब जाकर के 2017 में जाकर के हमारे यहाँ पर क्या हुआ? फाइनली हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। सो द जीएसटी जर्नी बिगेन इन द फर्स्ट ईयर, कब हुआ था? 2000, जब जीएसटी कमेटी का ड्राफ्ट बनाया गया था, ठीक है। So it took 17 years from law to evolve. 2016 में जीएसटी बिल पास हुआ, कहां पर? लोकसभा और राज्यसभा में, और 1 जुलाई 2017 को लॉ क्या हो गया? इट केम इनटू फोर्स, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जीएसटी रेट्स क्या क्या हैं। तो हम बात करें डिफरेंट रेट्स हैं, और तो हम लेटेस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है टैक्स रेट्स की बात करें तो 0% टैक्स रेट है किसके ऊपर है आपका? 50% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस बास्केट, मतलब बहुत जो हम यूज करने वाला होता है डेली यूज में, जो हमारे पास जो गुड्स आते हैं उनके ऊपर, राइट। जैसे कि हम बात करें मिल्क वगैरह हो गया ना, तो इनके ऊपर क्या है? टैक्स नहीं लगता है, दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम बीइंग चार्जिंग द टैक्स, राइट। फिर जो और भी जो है जिनमें थोड़ा सा प्रॉफिट चार्जेस ज्यादा होते थे,
तो जैसे कि 5% चार्ज कर रखा किस पे, मास कंजम्पशन आइटम्स लाइक स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल। तो कहने का मतलब जो फूड से रिलेटेड जो रेगुलर बेसिस पे जो हमारे को यूज आते हैं आइटम्स, उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है, गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स चार्ज करती है, द गवर्नमेंट चार्जेस ईदर 5% और गवर्नमेंट डज नॉट चार्जेस एनीथिंग, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका 12% विच इज प्रोसेस्ड फूड्स। जो भी आपके जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं ना, जैसे कि अपन कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, ये आपके जो आप मार्केट से यूज करते हो, तो ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं। और इन प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट चार्जेस 12% टैक्स, राइट। देन कम्स 18% सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स, राइट। इनके ऊपर गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स चार्ज करती है, 18% गुड्स चार्ज, जीएसटी चार्ज करती है। फिर आता है 28%, राइट। 28% जो आपके कार्स हो गए, उनके ऊपर गवर्नमेंट कितना चार्ज करेगी, 28% चार्ज करती है। फिर उसके बाद आता है आपका 28% प्लस सेस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब है टैक्स रेट दोनों का सेम ही 20%, बट गवर्नमेंट उससे भी एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करती है, तो 28% प्लस सेस चार्ज करती है। तो वो किस पे चार्ज करती है, ये आपके लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स आपकी जो आती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीजें, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, 28% टैक्सेस चार्ज कर रही है और इसके ऊपर कुछ सेस और ले रही है, राइट। तो ये तो वो आपके टैक्स रेट के बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज बता दूं, आज भी हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारे तो नहीं बट थोड़े से गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करती है। जीएसटी चार्ज करती है इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स नहीं लेती है, टैक्स लेती है, बट अभी भी उनको जीएसटी में नहीं लेकर के आ गया है। उनके ऊपर अभी भी टिल द डेट वी आर चार्जिंग वैट ऑन दोस प्रोडक्ट्स लाइक एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल एंड डीजल, राइट, एविएशन एंड टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, राइट। अभी जैसे आप लॉकडाउन हुआ था तो इनिशियली दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी वैट बढ़ा दिया था पेट्रोल एंड डीजल। तो ये क्या है, these all are the taxes which is, these are the goods which are not the part of the GST regime। अभी भी इनके ऊपर क्या होता है, वैट चार्ज किया जाता है, राइट। सो दिस इज to know that these are all the taxes, these are all the goods in which the GST is not yet charged, they all come under still the VAT concepts, right। next comes is कि सर ये डिसाइड कौन करता है कि कितना जीएसटी लगना है, तो डिसाइड कौन करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिसाइड करती है। सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है स्टूडेंट्स, तो नो दैट कि ये एक जॉइंट कमेटी है, किसकी, स्टेट और सेंटर्स की, राइट। जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट कमेटी ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो कौन कौन इसको में होता है, सबसे पहला तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल, राइट। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज और रेवेन्यू और फाइनेंस, वो सारे के सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन और फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय दिस ईच स्टेट गवर्नमेंट, वो भी क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। तो सिर्फ एक चेयरपर्सन होता है और बाकी सारे इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। Am I clear students? So this is all from the GST। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन सिंघवी ब्रदर्स 2020@gmail.com। we are always there for you guys so that you can catch us, right। तो ये सारी चीजें जो हम आपको वहां पर, कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी सोल्यूशन चाहिए हो, आप हमें लिख सकते हैं, राइट। That's all from my side, guys। Please, it's a request all of you to please subscribe our channel to update with our regular videos, right। Okay students, thank you very much for being here, thank you everyone for watching the video till the end, thank you everyone।